So I welcome you all to lecture number 9 for Places in News. What we are trying to achieve in this lecture series, we are trying to cover all the important geographical locations which featured in past 1 year's current affairs. As you guys all know कि prelims के अगर पिछले 10 साल के papers का analysis किया जाए, तो we find that at least 15 questions come from map based questions और geographical location based questions. और वो जो geographical locations होती हैं वो कहाँ से choose होती हैं? Well, those locations are chosen by analyzing past 1 year's current affairs. तो पिछले एक साल में जो जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी, जियोग्राफिकल लोकेशंस थी, जो न्यूज में बहुत ज्यादा फीचर हो रही थी और जिनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मैंने उन सब की एक लिस्ट बनाई है. देयर आर 30 to 40 लोकेशंस लाइक दैट, और उन लोकेशंस को मैं कवर कर रहा हूं इस लेक्चर सीरीज से. ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू गिव मी जस्ट 15 मिनट्स डेली, ठीक है, एंड यू शैल बी एबल टू सिक्योर 15 क्वेश्चंस from your in your prelims 2024 examination. So 15 minutes आपने डेली देने हैं till your examination. वैसे ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, और ये लेक्चर सीरीज अगर आप रेगुलरली फॉलो करे थे फ्रॉम लेक्चर 1 to today's lecture number 9, then you'll be able to safely secure 15 questions, क्योंकि सारी geographical locations almost जो important थी वो हम कवर कर चुके होंगे. Now time is of the essence over here, ज्यादा टाइम रह नहीं गया है prelims में, so इसीलिए let's jump quickly to the lecture. Let's start with the lecture and let's take a look at today's locations that we are going to cover. So first of all, we are going to cover Senkaku Islands. It is a big dispute between, these islands are a big dispute between Japan and China. Alright? Then India और म्यांमार के बीच में सिटवे पोर्ट को लेके डील हुई है. सिटवे पोर्ट क्या है, कालादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट क्या है, we'll talk about that. And then we'll talk about Aral Sea. Aral Sea has disappeared. It has dried up. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी साइंटिफिक रिपोर्ट्स आ रही हैं, hence Aral Sea becomes important for us. So without further ado, बिना किसी देरी के, let's start with Senkaku Islands. Alright, so let's talk about Senkaku Islands. Look, Senkaku Islands are a group of small uninhabited islands in the East China Sea. Now take a look at the map over here. ये जो ताइवान से नीचे वाला रीजन है ना, this is known as South China Sea and we have covered it. ताइवान से जस्ट ऊपर जो रीजन है ना, दिस इज नोन एज ईस्ट चाइना सी, और ईस्ट चाइना सी में यहाँ पे है सेनकाकू आइलैंड्स. नाउ दे आर क्लोजर टू ताइवान, दे आर क्वाइट क्लोज टू चाइना, दे आर आल्सो क्लोज टू जापान, एंड जापान के ना यहाँ पे सीरीज ऑफ आइलैंड्स हैं. ऑलराइट, नाउ ये जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं, इन्हें क्लेम करता है जापान, इन्हें क्लेम करता है चाइना, इन्हें क्लेम करता है ताइवान. ऑलराइट, नाउ इट इज द सब्जेक्ट ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन जापान, चाइना, ताइवान. ना देखो, सेनकाकू आइलैंड्स जो है, जो इनका नाम है, ये जापानीज में है. जापान इन्हें सेनकाकू आइलैंड्स बुलाता है, whereas China calls them Diaoyu Islands. Diaoyu Islands, alright? And Taiwan calls them Diaoyu Tai Islands. ठीक है? बाकी 1945 से लेके 1972 तक these islands, सेनकाकू आइलैंड्स, were under the control of America. तो वो लोग इन्हें पिनिकल आइलैंड्स भी कहते थे. Alright? Now the islands are located northeast of Taiwan. You can take a look here. यहाँ पे ताइवान है, तो northeast में इधर है. East of China, of course. West of Okinawa. So Okinawa is a Japanese island. Alright? तो उसके western side पे ही है almost. And जो ये Okinawa island है ना, it is part of an island chain. And that island chain is known as Ryukyu Islands. Now Ryukyu Islands are part of Japan, जिसका एक छोटा सा island है Okinawa. Alright? तो ये territorial dispute है. Now ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है क्यों? दोनों साइड्स का कुछ या तीनों साइड्स का कुछ क्लेम होगा. तो सबसे पहले जापान का क्लेम देख लेते हैं कि जापान क्या कह रहा है कि ये एरिया क्यों है. जापान सेज कि 1895 में हमारा इस आइलैंड पे कंट्रोल आ गया था, हमने इस आइलैंड को डिस्कवर करा और यहाँ पे अपने लोग एस्टैब्लिश कर दिए या इसको अपने कंट्रोल में ले लिया. फ्रॉम 1895 टिल द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 व्हिच वाज 1945, 1895 से लेके 1945 अराउंड 50 इयर्स तक ये हमारे कंट्रोल में रहा. बट बिकॉज जापान लॉस्ट द वर्ल्ड वॉर 2, तो अंडर अ ट्रीटी ये जो आइलैंड्स हैं, सेनकाकू आइलैंड्स, ये उसे यूएसए को देने पड़े. यूएसए एडमिनिस्ट्रेट दीज आइलैंड्स एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रियोक्यू आइलैंड्स. ठीक है, फ्रॉम 1945 टू 1972. तो रियोक्यू आइलैंड्स का ही से पार्ट बना के, ये देखो ये रियोक्यू आइलैंड्स हैं जिसमें ये ओकिनावा है, रियोक्यू आइलैंड्स का पार्ट ही सेनकाकू बना के इसे एडमिनिस्टर करा यूएसए ने. 1972 में ओकिनावा रिवर्जन अग्रीमेंट हुआ यूएसए और जापान के बीच में, जिसमें ये जो सेनकाकू आइलैंड्स है, these were given back to Japan. Alright? Now ये जापान का क्लेम है कि लीगली अंडर वेरियस अग्रीमेंट्स, लीगली देखा जाए बहुत सारे अग्रीमेंट्स हुए हैं, उनके मुताबिक तो these islands should be in our control and they are in Japan's control. But China stakes claim over these islands. चाइना क्या क्लेम स्टेक करता है?
चाइना कहता है जब मिडिवल टाइम्स में चाइना रूल कर रहा था पूरे चाइनीज मेनलैंड को, और जो डायनेस्टी वहां पे थी, उन्होंने 14 सेंचुरी में ये आइलैंड को डिस्कवर किया, और तब से वो चाइना कहता है ये हमारा ही था। 1895 में तो जापान ने जबरदस्ती हथिया लिया था। इनफैक्ट बोथ चाइना एंड ताइवान अग्री दैट द आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ ताइवान। दोनों अग्री करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मैप में, दीज वर क्लोजर टू ताइवान। सो बोथ चाइना एंड ताइवान अग्री दैट ये ताइवान का ही पार्ट है। ताइवान में एक काउंटी है ताओचिंग टाउनशिप, उसका पार्ट है। बट सिंस चाइना पूरे के पूरे ताइवान को ही क्लेम करता है, चाइना कहता है ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी। तो पूरे के पूरे ताइवान को कंट्रोल करने की वजह से, या पूरे के पूरे ताइवान को क्लेम करने की वजह से, दीज आइलैंड्स आर आल्सो चाइनीज क्लेम्स, दे फॉल अंडर चाइनीज क्लेम्स। इन आइलैंड्स पे बहुत सारे यहाँ के सिटीजन फ्लैग लेके जाते हैं, ये चाइनीज फ्लैग लेके जा रहे हैं, ताइवानीज फ्लैग लेके जा रहे हैं। ऑलराइट, नाउ व्हाई आर दीज थ्री कंट्रीज फाइटिंग ओवर दीज आइलैंड्स? इन आइलैंड्स की सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, 1968 में अंडर सी ऑयल रिजर्व्स यहाँ पे डिस्कवर हुए हैं, तो तीनों कंट्रीज चाह रही हैं कि ये ऑयल रिजर्व्स उन्हें मिल जाएं। प्लस यहाँ पे रिच फिशिंग ग्राउंड्स हैं व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर फूड सिक्योरिटी। प्लस इफ यू कैन सी दिस मैप, तो बहुत सारी ये जो ब्लू लाइंस आप देख रहे हो, दीज आर इंटरनेशनल सी लेन्स ऑफ शिपिंग। The country which controls these islands would control these shipping lanes and would also have some control over the maritime trade happening in this region. ठीक है, इस वजह से। नाउ ये न्यूज में क्यों था? ये बहुत टाइम से न्यूज में है, बट रिसेंटली व्हाई these Senkaku Islands came in news, because Chinese Coast Guard ships, and let me tell you, armed Chinese Coast Guard ships Senkaku Islands के पास पहुंची थी। 4 armed Chinese Coast Guard vessels Senkaku Islands के पास पेट्रोल करके चली गई, जिसकी वजह से जापान लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट बीजिंग। इनफैक्ट यूएसए एंड जापान ने जॉइंट स्टेटमेंट भी दी हुई है कि चाइना शुडंट ट्राई टू चेंज स्टेटस को इन दीज आइलैंड्स। As of now, these islands are administered by Japan, but China is taking a claim. All right, chalo. This issue ends here. Now let's move on to the second issue, which is Sitwe Port. All right. Now Sitwe Port क्या है? देखो, if you can see over here in this map, this is India. कोलकाता है इंडिया का, and ये म्यांमार है। म्यांमार का एक पोर्ट है called Sitwe. Right? It is a deep water port located at the estuary of कालादान river. तो यहाँ से ना कालादान रिवर फ्लो करती है, और यहाँ पे वो डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है, वहां पे ये पोर्ट लोकेटेड है। एज फार एज म्यांमार इज कंसर्न, तो ये जो सिटवे रीजन है, सिटवे पोर्ट है, ये म्यांमार की रखाइन स्टेट में पड़ता है। नाउ इट वाज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, KMTTP. Now KMTTP is an agreement between India and Myanmar कि हम यहाँ पे पूरा एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज दिस कालादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट? we'll find that out, or we'll talk about it in detail. पहले इसको सिटवे पोर्ट को कवर कर लेते हैं। ऑलराइट, इंडिया हैज रिसेंटली सिक्योर्ड द राइट टू ऑपरेट इट्स सेकंड ओवरसीज पोर्ट आफ्टर चाहबहार इन ईरान, सिटवे, आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इंडिया के दो ही ओवरसीज पोर्ट्स हैं जहां पे इंडिया ऑपरेट कर सकता है, वन इज चाहबहार इन ईरान एंड द अदर इज सिटवे पोर्ट। ऑलराइट, यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देयर आर ओनली टू पोर्ट्स, overseas ports, that India controls, और पूरे के पूरे नहीं, पर some area of those ports India controls. All right. Now let's talk about the Kaladan project. So basically ये Kaladan project है क्या? As you can see, कोलकाता या इंडिया से ना नॉर्थ ईस्ट में कोई भी आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है, सामान कुछ भी करना है, तो बहुत टाइम लगता है, बिकॉज ये एक नैरो कॉरिडोर आपको क्रॉस करना पड़ता है, तभी नॉर्थ ईस्ट में आप पहुंच सकते हो मेनलैंड इंडिया से। नाउ हमने सोचा कि क्यों ना हम म्यांमार के साथ डील कर लें, कोलकाता से शिप्स भेजे सिटवे पोर्ट तक, सिटवे से कालादान रिवर पे पलेटवा तक, दिस रीजन इज नोन एज पलेटवा, यहाँ रिवर की शिप्स, रिवर के थ्रू सामान पहुंचाएं। यहां से हाईवे बनाएंगे टिल एजोल इन इंडिया। ठीक है, वैसे तो इंडिया यहां से शुरू हो जाता है, जोरिन पुई बॉर्डर क्रॉसिंग, पर एजोल तक हम हाईवे बनाएंगे। सो शिपिंग रूट होगा, इनलैंड वाटरवे रूट होगा, हाईवे होगा, रेलवे लाइन बनाने की भी बात कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या है कि नॉर्थ ईस्ट को पे अच्छा और एक्सेस मिल जाए, ऑल्टरनेटिव एक्सेस मिल जाए अराउंड बांग्लादेश। ठीक है, इट वाज जॉइंटली आइडेंटिफाइड बाय इंडिया एंड म्यांमार टू क्रिएट अ मल्टी मोडल मींस डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सी भी है, इनलैंड वाटरवेज भी हैं, ठीक है, एंड रोड ट्रांसपोर्ट भी है, तो मल्टी मोडल है। ठीक है, or for shipment of cargo from the eastern ports of India to Myanmar, as well as to the northeastern part of India through Myanmar. The project connects Sitwe port in Myanmar to the Indian-Myanmar border and is expected to contribute to the economic development of northeastern states, because northeastern states भी अब ट्रेड कर सकती हैं। Now ये जो Sitwe to पलेटवा का जो रीजन है, ये पूरा कालादान रिवर पे ही है, तो यहाँ पे आप इनलैंड वाटरवे बना रहे हो, Sitwe to पलेटवा।
ये पूरा इनलैंड वाटरवे ही होगा, ठीक है, रिवर से ही, रिवर पे छोटी छोटी शिप से सामान पहुंचाया जाएगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट आपने दे दिया है इंडिया की इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया में हाईवेज डेवलप करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनलैंड वाटरवे के लिए ये है, इनको दे दिया था 2009 में। ऑलराइट, बस ये है कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और सिटवे पोर्ट, ये न्यूज में जो था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक ऑफ द डे व्हिच इज अराल सी। ऑलराइट, ना अराल सी न्यूज में क्यों थी? ये इसलिए थी क्योंकि ये सी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ड्राई अप हो चुकी है। बहुत बड़ी एक तरह की लेक थी, सी कह देते हैं, लेक कह देते हैं, पर ये पूरी की पूरी ड्राई हो चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट अराल सी। सो अराल सी वाज एन एंडोरिक लेक, एंडोराइक लेक। ना व्हाट इज एन एंडोराइक लेक? देखो, एंडोराइक लेक वो होती है जो क्या होता है, लैंड में ना एक बेसिन बना हुआ है, एक डिप्रेशन है, खड्डा है जिसे हम कहते हैं, सिंक है, ठीक है, उस सिंक में पानी भर गया है। ऑलराइट, उसे एंडोराइक लेक कहते हैं। सो अराल सी वाज एन एंडोराइक लेक, नाउ इट्स नॉट अ लेक एनीमोर, lying between Kazakhstan to its north and Uzbekistan to its south. अब देख सकते हो, this is Kazakhstan, this is Uzbekistan, and in between there is Aral Sea, right? This sea started shrinking in 1960s and 2010 में almost पूरी ही shrink हो गई। Alright? Recent study ये बताती है कि ये sea के shrink होने की वजह से ये पूरा dusty area बन चुका है। It's full of dust, and this wind in this area, wind blows strongly and it carries away all the dust in this basin, and पूरे सेंट्रल एशिया में डस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज अराल सी हैज ड्राइड। नाउ अराल सी ड्राई हो चुके हैं, 1960 से ड्राई होना शुरू हो गई थी। सो लेट्स टॉक अबाउट अदर फैक्ट्स ऑफ अराल सी। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड अराल मींस, यहाँ पे ना ये जो स्तान कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ये स्तान कंट्रीज हैं। यहाँ पे ना टर्किक लैंग्वेज या मंगोलिक लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो उन लैंग्वेजेस में अराल का मतलब होता है सी ऑफ आइलैंड्स। कुछ अराउंड 1100 आइलैंड्स थे सी में, इसीलिए ये नाम था अराल सी, ठीक है। अराल सी जो ड्रेनेज बेसिन था, ड्रेनेज बेसिन मतलब बहुत सारी रिवर्स इस एरिया में अराल सी में जाके खत्म होती थी, अराल सी में अपना पानी ड्रेन करती थी, इसीलिए अराल सी वाज सी, इट वाज अ बिग लेक। द रीजन वाज दैट मेनी रिवर्स ड्रेन्ड देयर वाटर्स इनटू दिस सी, ठीक है। मेनी रिवर्स फ्रॉम उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज, ताजिक, तुर्कमेनिस्तान, सो इट्स ड्रेनेज बेसिन वाज क्वाइट लार्ज। अगर ये ड्राई ना होती, 1960s में ड्राई होनी ना शुरू होती, तो इट वुड हैव बीन द थर्ड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, नाउ व्हाई डिड इट स्टार्ट ड्राइंग अप? बिकॉज इसमें जो बहुत सारी रिवर्स पानी ड्रेन कर रही थी, एक्चुअली ऑल दीज स्तान कंट्रीज बिकेम पार्ट ऑफ यूएसएसआर, और वी कॉल सोवियत यूनियन। रशिया तो था ही, यूक्रेन भी था, बट ऑल दीज स्तान कंट्रीज वर आल्सो पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने ना इन रिवर्स को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से ये रिवर्स अराल सी में पानी नहीं दे पा रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस सी स्टार्टेड ड्राइंग अप एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली 2010 में ड्राई अप हो गई। ऑलराइट, ये रीजन था बेसिकली। नाउ देयर आर अदर लेक्स और सीज दैट आर ड्राइंग अप, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट ईरान में ही है। एक तो है आपकी लेक उर्मिया, as you can see in this map, it is drying right now, अभी पूरी तरह ड्राई नहीं हुई है। लेक उर्मिया जो है, this lies in the northwestern region of Iran, alright? This is known as the Azerbaijan region of Iran. अजरबैजान यहाँ बॉर्डर पास में ही है, ठीक है। इट इज ड्राइंग अप, यू कैन सी द सैटेलाइट इमेजेस, जल्दी जल्दी ड्राई अप हो रहा है। और एक है ईरान अफगानिस्तान, यू कैन सी ये अफगानिस्तान है, ईरान है, ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पे ही है हनोश लेक। Let me check the name. Yeah, not Hanosh, Hamon Lake. It is a freshwater lake basically, and this is मतलब ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पे ही है। This lake is also drying up. So lakes are shrinking, global warming हो रही है, लेक shrink करती जा रही हैं, और बहुत सारे man made factors की वजह से, जिन्हें हम कहते हैं anthropogenic factors. Anthropogenic factors की वजह से various lakes are drying up. For example, सोवियत यूनियन अगर वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए ना डाइवर्ट करता, तो लेक ना ड्राई अप होती, राइट, अराल सी ना ड्राई अप होती। चलो, with that we conclude today's lecture. Now we are done with lecture number 9 and there are a couple of more lectures left, और उसके बाद आपके ये जो 30-40 लोकेशंस हैं, ये हो जाएंगी कवर। ऑलराइट,
अभी भी जिन्होंने मुझे इन लेक्चर सीरीज में अब जाके ज्वाइन करा है विद लेक्चर नंबर 9 और विद लेक्चर नंबर 8, माय सिंसियर एडवाइस टू यू गाइस वुड बी दैट यू जस्ट गिव 15 मिनट्स डेली टिल योर एग्जाम. वैसे तो एग्जाम में भी ज्यादा टाइम नहीं रह गया, बट जस्ट गिव 15 minutes daily till your exam and cover all these locations. They would really help you out. At least you'll be able to secure 15 questions from your prelims 2024 examination. All right, I'll see you next time with lecture number 10. Thank you so much for watching, guys.